من انفسهم يتلو عليهم آياته. اللہ اللہ. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم کہاں کس صحرا میں چلے جا رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانے کی وجہ سے کہ نہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس طرح کی محفلیں میلاد سے متعلق ہو یا سیرت پاک سے متعلق ہو یا میلاد النبی ہو یا سیرت النبی ہو، یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں کرنا یہ جائز نہیں. کہاں کی بات ہے یہ؟ آپ اسلام میں جو دلیل لیں گے قرآن اور سنت سے لیں گے، اجماع اور قیاس سے لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کن پر؟ مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. احسانات تو اللہ کے اتنے ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی اور بھی آیت کریمہ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنا شروع کرو، کاؤنٹ کرنا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ قیامت تک نہیں کر پاؤ گے. لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمت ہے. آپ دیکھیں فور ایگزامپل ایک مختصر سی بات کروں. میں ایک ایسے مریض سے میری ملاقات ہوئی. دیکھیے آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، وہ دماغ جو آپ کا ذہن ہے وہ اللہ کی نعمت، ہر اللہ کی نعمت، وہ چاہے وہ چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، اسلام اللہ کی نعمت ہے. یہ اگر ہم نعمتیں شمار کرنا شروع کریں تو قیامت تک شمار نہیں کر پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک مریض سے میری ملاقات ہوئی، آپ سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے. وہ مرض کیا ہے؟ بالکل سمپل مرض ہے. مرض کیا ہے کہ وہ جو تھوک ہے زبان میں، وہ تھوک اس کے منہ میں وہ تھوک نہیں پیدا ہوتا ہے. تو جب تھوک پیدا نہیں ہوگا تو زبان بالکل خشک رہے گی. کتنی معمولی سی بات ہے. اور مکھے تھو تھو جنمو رہنا ایسا مریض ہے এমন রোগী যে তার মুখে থুথু জন্ম নিচ্ছে না, সবকিছু ঠিক আছে ওকে, বাট তার মুখে থুথু হচ্ছে না. ہر چیز ٹھیک ہے لیکن زبان میں تھوک پیدا نہیں ہو رہا ہے. اب پرابلم کیا ہوا؟ وہ چنئی جسے مدراس کہاں کہاں وہ جا رہا ہے، یہاں سنگاپور کہاں کہاں اسے لے جایا گیا. میں جب میں سنا میں کہ یار پریشانی کیا ہے، ایک تھوک پیدا نہیں ہو رہا تو حرج کیا ہے؟ نہیں تھوک ہو کے جاؤ. کہ نہیں حضرت ہو رہی ہے. جب تھوک نہیں ہوگا منہ کے اندر تو نقصان کیا ہوں گے کہ وہ جب آپ کوئی چیز منہ میں رکھ کر چباتے ہیں تو وہ خمیرہ، تھوک کا کام ہے وہ منہ میں جانے کے بعد وہ خمیرہ اس کے اندر لیکوڈ بناتا ہے. اور جب لیکوڈ بن جائے گا تو پھر آپ کو نگلنے میں، اسے گلنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب اگر تھوک نہیں ہو تو ایک تو زبان خشک، اور جب زبان خشک ہوگی تو آپ جو چیز منہ میں ڈالو گے وہ ویسے کی ویسے ہی رہ جائے گی، وہ اندر جا ہی نہیں سکتی. میری بات تو ٹھیک ہے. اب اس تھوک کے لیے نہ جانے اس نے کتنے لاکھ بنگلہ دیشی ٹکا خرچ کیے. جناب یہ تھوک جسے آپ پھینک دے رہے ہیں یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اسی کی تعریف کی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے آنکھیں دی تم پر احسان کی، میں نے عقل دی تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں اسلام دیا تم پر احسان کیا، قرآن دیا تم پر احسان کیا، میں نے رمضان کے روزے دیے تم پر احسان کیے، میں نے اتنی ساری نعمتیں دی تم پر احسان کی. یہ نہیں فرمایا. لیکن جب اس کے محبوب کو بھیجنے کی بات آئی، جب اس کے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی بات آئی تو رب فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنوں سن لو، میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں جاہل سے عالم بنانے کے لیے، کافر سے مومن بنانے کے لیے، مشرک سے تمہیں مسلم بنانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیج دیا. سبحان اللہ.
अल्लाह अकबर। अब जब मेरे महबूब की सोहबत में बैठोगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो जाओगे, मेरे महबूब की सोहबत में बैठोगे तो उमर फारूक हो जाओगे, उस्मान गनी हो जाओगे, मौला अली हो जाओगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक में बैठोगे तो लोग तुम्हें सहाबा कहेंगे। और ये सहाबा की वो शान है कि सरकार गौस पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सहाबा की शान मेरे नजदीक इतनी अजीम और इतनी बड़ी है कि मैं इमामुल औलिया होने के बावजूद एक सहाबा के कदम पाक के बराबर भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जब रब ने भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, हमने अपने महबूब को भेजा और भेजकर तुम पर एहसान किया। मैं कहा अल्लाह इतने एहसानात तेरे हैं, किसी पे तूने नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया, महबूब के बारे में फरमाया कि एहसान किया। बोले हाँ, क्यों? कि ये जितनी नेमतें हैं मेरी, अगर मेरी नेमत को तुम शुमार करना शुरू करोगे शुमार नहीं कर पाओगे। वहां मैंने नहीं जताया कि तुम पर मैंने एहसान किया, लेकिन तमाम नेमतों में मेरे नजदीक सबसे अजीम नेमत मेरे महबूब है। तमाम नेमतों में सबसे आला, सबसे माला, सबसे अफजल, सबसे ग्रेट, सबसे बेस्ट जो नेमत है वो मेरे महबूब है। इसीलिए जब महबूब को भेज रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तुम पर एहसान किया। अहबाब गिरामी, वाकई एहसान है अल्लाह ताला का, और ये ऐसा एहसान है कि अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया ने अर्ज किया है अल्लाह हमें नबी ना बना मौला, हमें तो अपने महबूब की उम्मती में शुमार करवा दे। और फिर भी उनकी दरखास्त कबूल नहीं की गई, उनके एप्लीकेशन नहीं माने गए, और हमें तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया रब ने बगैर एप्लीकेशन के। तो ये उसका एहसान है कि नहीं? अब आइए हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत से फायदा जो हमें इतने फवायद हुए, उनमें से चंद फायदे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक ये कि उम्मत साबिका, दो चार बातें बंगला में भी करूं हमारे बंगाली भाइयों के लिए। उम्मत साबिक आगे का ये उम्मत छिले, उम्मत साबिका उनकी शरीयत में यह था कि अगर कहीं पर नजासत लग जाती, कहीं पर भी, जिसमें कहीं पर भी नजासत अगर लग जाए, नजासत से मुराद है आप बच्चे को लिए, बच्चे ने गलाजत कर दिया, पायखाना कर दिया। अब उम्मत साबिका में यह कानून था कि वहां पर उतना जो आपको चमड़े काट कर फेंक देना है, गोश्त काट कर फेंक देना है। अगर कपड़े के किसी जगह में अगर नजासत लगती है तो वो कपड़े को यहां से काट कर फेंक देना है। और दुनिया में आप जहां चाहें वहां आप इबादत नहीं कर सकते। जो मखसूस इबादत गाह है, चाहे वो 5 माइल हो सकता है, 500 माइल हो सकता है, चाहे वो दुनिया के औसत में हो या आबाद में हो, लेकिन जो मखसूस इबादत की जगह है वही जाकर आप इबादत कर सकते हैं। हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत देखिए कि मेरे महबूब के कदम पड़े, दुनिया में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मस्जिद डिक्लेयर दे दिया। मेरे महबूब के कदम पाक पड़े, पूरी दुनिया मस्जिद हो गई। जहां चाहो पाक जगह है, चाहे वो मस्जिद हो, मस्जिद की छत हो, रास्ता हो, तुम्हारा मकान हो, तुम्हारी मकान की छत हो, दुनिया की किसी भी खित्ते में अगर जगह पाक है तो मेरे महबूब के कदम पाक लगने की वजह से हमने पूरी मस्जिद, पूरी दुनिया को मस्जिद बना दी। जहां चाहो नमाज अदा कर लो। अब वो तुम्हें जहां नजासत लगी थी उसे काट के फेंकने की जरूरत नहीं है, वहां पानी डाल दो, पाक पानी, उसे बहा लो, पाक, तुम वो जगह भी पाक हो जाएगी और वो कपड़े भी पाक हो जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अल्लाह अकबर। अहबाब गिरामी, हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा नबी अता फरमाया। हमारे पास अल्फाज नहीं है। आज कुछ लोग मिसगाइड होकर इस्लाम को बदनाम करने के लिए उन्होंने दहशत गर्दी अख्तियार की, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
आप देखें वो पूरी दुनिया में वो जो पाकिस्तान में स्कूल में घुसकर बच्चों को जो शहीद, बेगुनाह बच्चे उनको जो शहीद किए गए, ये इस्लाम नहीं है। आपसे हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, घर लेकर, दरवाजे लेकर, गाड़ी लेकर, बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, हत्ता कि मजहबी इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, अफकार में और एतकाद में भी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका माना यह नहीं है कि निहत्था बेगुनाह बच्चे घुसकर आप ब्रश फायर करके, फिर वो इजराइल ने स्कूल में वो मिसाइल से बच्चों को मारा और आप ब्रश फायर करके मारे, तो सो नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड इजराइल, सेम। क्या कोई फर्क नहीं है, बल्कि आपको तो यह दिखाना चाहिए था कि जंग के मैदान में, उहुद का मैदान है, आका अलैहिस्सलाम हजरत अमीर हमजा को जंग से पहले पुकारते हैं और कहते हैं, ए चाचा जान, याद रखिए यह अल्लाह उसके रसूल का कानून है, इस जंग में कोई बच्चा और कोई खातून पर हमारी तरफ से कोई वार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है, ये हमें सिखाता है इस्लाम। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम वो शख्स जो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को बहुत अजियत दी, सरकार अलैहिस्सलाम को तमाचे मारे, 3 साल बगैर दाना बगैर पानी के हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर अरेस्ट करके रखा, मैं फैमिली के 3 साल। वो शख्स हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवियां हैं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि नहीं, बच्चे और औरतों पर, चिल्ड्रेन और वीमेन पर कोई वार नहीं होना चाहिए, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों पर सौंपा। ये इस्लाम है। ये क्या क्या आप, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके लिंक जो हैं वो एंटी इस्लाम जो कुव्वतें हैं, जो कुव्वत है उसके साथ ही कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। बाकायदा हमारा यहाँ किसी के खिलाफ बोलना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये मैसेज आप लोग जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, आपके हर एक्टिविटीज की तरफ गैर मुस्लिमों की नजर है। आप कैसे चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपकी गुफ्तगू, आपके अफ़आल, आपके किरदार, आपकी हर एक्टिविटीज पर उसकी निगाह है। लिहाजा आपको देखकर वो ये समझे कि जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस कदर पीसफुल और इतने आला ख्याल के होंगे, इतने अच्छे कैरेक्टर के मानने वाले होंगे, तो इनके हबीब कैसे होंगे, इनके मौला, इनके महबूब कैसे होंगे? वो आप ईमान लाने पर मजबूर हो जाएंगे, बशर्ते कि हम पूरी तौर पर दीन हनीफ, हम अपने दीन की इत्तिबा करें। देखें, अब ये सारी बातें हुई, हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात में 178 में 178 नंबर पेज पे ये हदीस मौजूद है। सुइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन सौम यौमिल इत्नीन, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, सरकार से सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, हुजूर आपको देखता हूं कि हर मंडे को आप रोजा रखते हैं, जरा फरमाएंगे कि या रसूल अल्लाह इसके पीछे हिकमत क्या है, किस वजह से आप रोजा रखते हैं, एवरी मंडे आप रोजा रखते हैं, हर सोमवार के दिन आप रोजा रखते हैं, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इत्नीन, हर सोमवार को आप रोजा रखते हैं या रसूल अल्लाह, बराए करम जरा हमें इत्तिला दीजिए, उसकी वजह क्या है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल यौम वुलिदतु फी, ये दिन मेरे मिलाद का दिन है, दुनिया में आने का दिन है, ये मेरी यौम विलादत का, ये यौम विलादत का दिन, ये यौम विलादत है, और इस दिन मैं दुनिया में आया हूं। व उन्ज़िल अलैया, और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मैं इस दिन मैं रोजा रखता हूं। अच्छा, अब आप बोले कि 2 पॉइंट यहां हुजूर ने 2 पॉइंट्स हमें अता किए। एक,
صحابہ کرام نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ پھر فرمایا ذالک الیوم